Welcome back student, I am Santosh Misra, your account teacher, and today we will start a new chapter, ledger. So what is the ledger? In ledger, meaning and importance of the ledger, we will cover these topics: meaning and importance of ledger, distinction between books of original entry and ledger, format of ledger, posting from journal, closing and balancing of accounts, posting from cash book and posting from other special purpose subsidiary book. So this is the roadmap of the chapter. Now what is the meaning and definition of the ledger? So business transactions are first entered in journal or special purpose subsidiary book. If business organization is so big, then it divided its transaction into several books called subsidiary book. And if there are small number of transactions, then only one book is prepared for recording of the transaction, that is called journal. So if subsidiary book maintains, then we will record, we will prepare the cash book, purchase return book, sales book, sales return book, bills receivable book, bills payable book, and journal proper. Now bills receivable and bills payable books are combined, all the transactions relating to bills receivable and bills payable are recorded in the journal proper. So if in journal proper there are so many transactions, like as a credit purchase of fixed asset, depreciation of fixed asset, adjustment entry, adjustment of outstanding expenses, adjustment of prepaid expenses, and closing stock, and all the adjusting entry and rectifying entry will be recorded in the journal proper. So ledger, what is the ledger? So business transactions are first entered in journal or special purpose subsidiary book. The next step is to transfer the entry to respective accounts in ledger. So ledger is a book contain so much pages, and in other words, all entry recorded in journal or special purpose subsidiary books are classified, and in order to ascertain the position of a particular account, all transactions relating to that particular account are collected at one place in the ledger. तो लेजर में क्या रहता है, हम लोग क्या करते हैं, सारे जर्नल के जो भी एक पर्सन से रिलेटेड जहाँ जहाँ उसके जर्नल हुए हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं. तो क्लासिफाइंग जो क्लासिफिकेशन का वर्क रहता है वो लेजर करता है. तो लेजर में क्या होता है कि सारे एक पर्टिकुलर अकाउंट्स के ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस, उसको हम लोग लेजर बोलते हैं. देन इन शॉर्ट, लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स ऑल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस, वेदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल. तो हर तरीके का अकाउंट जो भी रहता है, हर तरीके के हम अकाउंट, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो नॉमिनल हो, हम सारे अकाउंट्स का हम रिकॉर्डिंग हम इसमें करते हैं. अब हम देखते हैं कुछ डिफिनीशन दी हुई है. द बुक विच कंटेन्स क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड द लेजर. तो ये एक तो क्लासिफिकेशन की बात करता है, और परमानेंट रिकॉर्ड सारे ट्रांजेक्शन का किसी भी बिजनेस के, वो उस बुक में, हम जिस बुक में रखते हैं उसको हम लेजर बोलते हैं. ये एलसी क्रॉपर की डिफिनीशन है, जे.आर. बार्टली बॉय की डिफिनीशन है. द लेजर इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स, एंड इट इज in this book that all the business transaction would ultimately find their place under their account in a duly classified form. तो ये हर जो भी अकाउंट रहता है, सारे बिजनेस अकाउंट ट्रांजेक्शन, वो अपना एक प्लेस पाते हैं. कहाँ पाते हैं? अंडर दियर अकाउंट्स, अपने अकाउंट में अपनी जगह पाते हैं, और ये ड्यूली क्लासिफाइड फॉर्म में रहता है. तो लेजर क्या रहता है? एक बाउंड रजिस्टर, जैसे इन अ फॉर्म ऑफ अ बाउंड रजिस्टर लेजर हमारा रहता है. एक बुक रहती है, मोटी बुक रहती है, जिसमें
or card or punch sheet in a loose leaf binder, तो इसमें सब कुछ रहता है। और each account in the ledger is opened preferably on a separate page or card। तो हर एक पेज पर, सेपरेट पेज पे हम एक अकाउंट खोलते हैं, 2-4 पेज आगे छोड़ देते हैं ताकि और भी ट्रांजेक्शन यदि उस अकाउंट से रिलेटेड रहेंगे तो हम लोग उसको कर देंगे। तो इस जो लेजर बुक रहता है इसमें जो पेज रहते हैं, इन्हीं किस पेज पे अकाउंट खोला गया है इसी को हम लोग लेजर फोलियो बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर फोलियो बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या है। आप द जर्नल फेल्स टू प्रोवाइड अस द एबव इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज ओनली अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ डेली ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। तो जर्नल में बस एक रिकॉर्ड रहता है, डेली रिकॉर्ड रहते हैं, तो हमको लेजर का जो बेनिफिट रहता है वो हमको मिल नहीं पाता है। तो इस वजह से ट्रांजेक्शन ऑफ अ सेम नेचर आर नॉट रिकॉर्डेड एट वन प्लेस इन द जर्नल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू नो अ पर्टिकुलर डेट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द सुरेंद्र मोहन एंड कंपनी, देन बहुत सारे ट्रांजेक्शन इनसे हुए होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम जर्नल में कुछ होंगे, कुछ सब्सिडियरी बुक में होंगे, तो हम सबको एक प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं। और वो क्या है, वो हम सुरेंद्र का अकाउंट बनाएंगे लेजर में, और वहां से हम जानेंगे कि कितना उसको देना है या उससे कितना रिसीव करना है। इसी तरीके से सेल बुक है, तो सेल बुक में आप देखेंगे कि एक तो सेल्स बुक में हम कुछ अमाउंट रिकॉर्ड किए रहेंगे, फिर सेल्स रिटर्न बुक है उसमें कुछ रहेगा, तो हम इन सबको, या कुछ कैश बुक में सेल्स रहेंगी डिफरेंट डेट पे, सबको हम एक अकाउंट में बनाएंगे, वो क्या रहेगा अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अब इसी तरीके से इन द लेजर ऑल द ट्रांजेक्शन pertaining to सुरेंद्र मोहन कंपनी विल बी पोस्टेड एट वन प्लेस in an account opened in their name which will provide a complete picture of all transaction relating to them। तो उससे रिलेटेड हम सारी ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करेंगे। तो लेजर को हम क्या बोलते हैं, लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक। तो लेजर क्या है आपके लिए, प्रिंसिपल बुक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। ये फाइनल एंट्री भी माना जाता है क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन जो रहते हैं वो फर्स्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल में और सब्सिडियरी बुक में, और फाइनली इनकॉर्पोरेटेड किए जाते हैं लेजर में। तो लेजर हम क्यों बनाते हैं, आइए हम देखते हैं इसका। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द लेजर। लेजर के एडवांटेज क्या है, ऑल ट्रांजेक्शन आर ओपन ऑन सेपरेट पेज इन दिस बुक। तो इस बुक में क्या रहता है, हर ट्रांजेक्शन एक सेपरेट पेज पे रहता है। हेंस ऑल ट्रांजेक्शन pertaining टू एन अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस इन द लेजर। इसलिए सारे ट्रांजेक्शन क्या रहते हैं आपके लेजर में आपको मिल जाएंगे। और जब हम बैलेंस देखेंगे उस अकाउंट का, बाय लुकिंग एट द बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट वन कैन अंडरस्टैंड द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल सच ट्रांजेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो कोई भी व्यक्ति कलेक्टिव जो इन्फॉर्मेशन रहती है, तो डेटा इधर उधर बिखरे रहते हैं, उनको हम कलेक्टिवली लेके एक कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। सेकेंड क्या है इसका एडवांटेज, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस कैन बी इजिली ऑब्टेन फ्रॉम द ledger, such as how much amount each customer owes to the firm, how much amount the firm owes to each creditor, कितना किसी कस्टमर से हमको कितना लेना है, क्रेडिटर को कितना पे करना है, और how much is the amount of purchase and sale during a particular period, how much amount has been paid or received on account of various item, and what is the ultimate position of the assets and capital। तो ये सब कुछ हम कैपिटल का अकाउंट बना के या वो एक पर्टिकुलर क्रेडिटर का डेटर का अकाउंट हम बना के हम इस बात का पता कर सकते हैं। तो ये लेजर के ही जरिए होता है। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द लेजर। तो ट्रायल बैलेंस जनरली प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द लेजर। तो लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमको लेजर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है वो हमको पता चलता है। और सर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं क्यों है, क्योंकि वी कैन फाइंड द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को असरटेन करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस लेजर के ही हेल्प से बनता है।
अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द लेजर बैलेंस। और ट्रेडिंग पीएल, जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तब तक ट्रेडिंग पीएल नहीं बनेगा। तो सबका बेस आपका क्या आ जाता है, लेजर आ जाता है। अ बैलेंस शीट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द लेजर बैलेंस विच डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और सब कुछ भाई लेजर नहीं रहेगा तो ट्रायल नहीं बनेगा, ट्रायल से ही ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनते हैं, तो वो नहीं बन पाएगा। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द लेजर। सो नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर में क्या डिफरेंस है? द बुक इन विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म एज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। स्पेशल पर्पज सब्सिडियरी बुक, सबसे पहले जिसमें रिकॉर्ड करते हैं वो सब्सिडियरी बुक रहता है या आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। द ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिस बुक are then transferred into ledger account, as such the ledger is called the principal book। इसलिए हम इसको प्रिंसिपल बुक बोलते हैं क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन अल्टीमेटली इसको क्या बोलते हैं, इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। सारे ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडियरी बुक को, जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अब प्रिंसिपल बुक बोलते हैं लेजर को। तो बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शन अल्टीमेटली फाइंड देयर वे इनटू द लेजर, तो वो सब अपना रास्ता देख लेती हैं। तो कैश बुक जो कंसर्न होता है, तो कैश बुक क्या है, इट्स आल्सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड प्रिंसिपल बुक। तो कैश बुक क्या है, जब कैश बुक मेंटेन करते हैं देयर इज नो नीड टू ओपन अ कैश अकाउंट। सो जो आपका कैश बुक रहती है वो आपका ओरिजिनल एंट्री के साथ साथ प्रिंसिपल बुक भी है। तो बिकॉज ऑल द कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कैश बुक एंड इट देयरफॉर अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एंड इसको हम लोग क्यों, क्योंकि कैश अकाउंट मेंटेन जरूरी, व्हेन वी मेंटेनिंग अ कैश बुक देन देयर इज नो नीड टू मेंटेन अ सेपरेट कैश अकाउंट। तो ये बात रहती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर का फॉर्मेट क्या होता है हम देखेंगे। लेजर का फॉर्मेट क्या है, तो सबसे पहले लेजर का फॉर्मेट देखने के लिए ये देखिए लेजर का फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या रहेगा, डेट रहेगा, फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम जनरल फोलियो। मतलब डेट में तो ट्रांजैक्शन का डेट रिकॉर्ड होगा, पर्टिकुलर में ईच ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट, द नेम ऑफ अदर अकाउंट। देखिए जिसका आप अकाउंट बना रहे हो उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं रहता है, अदर अकाउंट किसको वो अफेक्ट कर रहा है उसका नाम रहता है पर्टिकुलर में। जर्नल फोलियो और जेएफ, इन दिस कॉलम द पेज नंबर ऑफ द जर्नल और सब्सिडियरी बुक फ्रॉम विच दैट पर्टिकुलर एंट्री इज ट्रांसफर्ड इज इंटर्ड। तो पेज नंबर जो रहता है हम उसको इसमें रिकॉर्ड करते हैं और अमाउंट रहता है वो आपका। तो इसमें किसी भी अकाउंट के ये डेबिट साइड में 4 कॉलम और क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम रहते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं, ये लेजर का है। रूल ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग का रूल क्या है, हम कैसे पोस्ट करते हैं। तो पोस्टिंग का रूल आप जब देखेंगे तो रूल ऑफ पोस्टिंग देखते हैं, व्हाट इज द रूल ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल और सब्सिडियरी बुक टू द लेजर। तो पोस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम एंट्रीज को क्या करते हैं, जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं। कौन कौन सा रूल लगता है भाई, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एन अकाउंट शुड बी इंटर्ड एट वन प्लेस। तो जो भी ट्रांजेक्शन है एक अकाउंट से रिलेटेड उसको वन प्लेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। In other words, 2 separate accounts should not be opened for posting transaction relating to the same account। अब जैसे राम का अकाउंट बना रहे हैं तो राम का एक ही अकाउंट बनेगा, 2 जगह राम का अकाउंट नहीं बनेगा। अब क्या है, इफ देयर आर 2 कस्टमर विथ सिमिलर नेम तो हम लोग लिख देंगे, जैसे अनिल है, अनिल एक करोल बाग के हैं, एक चांदनी चौक के हैं। तो हम अब अनिल लिख रहे हैं तो आप ये मत बोलिए अरे सर आज तो अनिल का 2 अकाउंट खोले हैं। अरे एक अनिल चांदनी चौक का है और एक अनिल किसका है, करोल बाग का है, ये दिल्ली में पड़ता है। द वर्ड टू इज यूज्ड बिफोर द अकाउंट विच अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट। तो जो टू वर्ड रहता है वो डेबिट साइड में, एंड वी विल यूज बाई फॉर द क्रेडिट।
credit side. The by is used before the account which appears on the credit side of an account. So to and by is a suffix for which is used before the name of the account to represent. Third point is, if an account has been debited in the journal entry, the posting in the ledger should also be made on the debit side. जैसे देखिए आपने एंट्री की कैश रिसीट फ्रॉम मोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, देन इफ वी आर प्रिपेयरिंग द कैश अकाउंट देन टू मोहन बिकॉज अब किस साइड में रहेगा? डेबिट साइड में. क्यों? क्योंकि कैश आपका जर्नल एंट्री में डेबिट में है. आप मोहन का अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन जनरल एंट्री ये है, आप उसका पोस्टिंग करेंगे. यदि आप मोहन का अकाउंट बना रहे हैं तो उसके क्रेडिट साइड में आएगा. उसके क्या आएगा? क्रेडिट साइड में. क्यों आएगा? क्योंकि सर मोहन जनरल में क्रेडिट में है, इसलिए जब पोस्टिंग होगी मोहन के अकाउंट में तो क्रेडिट साइड में होगी. और क्या लिख के होगी? बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट. So if an account has been debited in the journal entry, the posting in the ledger should also be made on the debit side of such account. In the particular column, the name of other account which has been credited in the journal entry should be written for the reference. तो जिस अकाउंट का नाम मोहन है तुम बाई मोहन नहीं लिखेंगे, बाई कैश लिखेंगे. If an account has been credited in the journal entry, यदि क्रेडिट हुआ है तो if an account has been created in the journal entry, the posting in the ledger should also be made on the credit side of that particular account. तो ये पर्टिकुलर कॉलम में भी पर्टिकुलर उस अकाउंट में आपके क्रेडिट साइड में एंट्री होगा. और क्या लिख के होगा? जो डेबिट में, जो अकाउंट डेबिट में रहेगा उसका नाम लिख के होगा. Similar amount which has been posted on the debit side of an account should also be posted on the credit side of another account. तो अब जैसे देखिए वो सिमिलर सारी बातें रहती है. कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन है तो मोहन के क्रेडिट में जितना अमाउंट से बाई कैश जाएगा उतना ही कैश अकाउंट में डेबिट में टू मोहन आएगा, उतने ही अमाउंट से. तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट की बात रहती है, दोनों पक्षों को प्रभावित करता है. तो एक के अकाउंट में क्रेडिट होगा और एक में डेबिट होगा. एंड नाउ इफ एन it is not necessary to write the word account after the personal account. तो पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं. राम है तो टू राम या बाई राम लिख देंगे. अब जैसे देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. इफ वी प्रिपेयर द कैश अकाउंट देन इन डेट कॉलम अप्रैल 1 2017 पर्टिकुलर कैश इज डेबिटेड, कैश इज डेबिटेड, देन वी पोस्ट द entry into the debit side of cash account written as to sales account. To sales account amount is the amount in front given of the cash account 20,000. We will write 20,000. In same way, if we open the sales account in journal entry, sales has been credited, that's why it should be credited in the it should be credited by cash account in the sales account, because sales account is written as in credit side of the journal. That's why we written as by cash account 20,000. So sales account will be credited because in the journal entry it is already credited. पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री. अब कंपाउंड जर्नल एंट्री का हम कैसे पोस्ट करते हैं? जैसे आपने ये एंट्री देखी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गोपाल 14,800, ये हमको कैश रिसीव हुआ है, हमने डिस्काउंट दिया, ये एक्सपेंस है डिस्काउंट का. और गोपाल 15,000 ये गोपाल हमको कैश पे कर रहा है. गोपाल इज गिवर, दैट्स वाई इट इज अ पर्सनल अकाउंट. सो डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर. सो इसलिए ये टू गोपाल कंपनी हुआ 15,000 से. ये 15,000 से क्या हो गया? टू साइड में आया है. अब आप देखिए यदि आप कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे कैश डेबिट में है, इसलिए जब आप कैश का अकाउंट ये प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो आप इसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू गोपाल एंड कंपनी. क्या लिखेंगे? टू गोपाल एंड कंपनी. और अमाउंट क्या होगा? जो कैश के सामने होगा 14,800. आप डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट खोलेंगे
तो डिस्काउंट अलाउड भी डिस्काउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका डेबिट होता है। आप देखेंगे इसके डेबिट साइड में एंट्री है, क्या लिख के है, टू गोपाल एंड कंपनी, और अमाउंट क्या है, जो डिस्काउंट के सामने का अमाउंट है वो है। अब आप जब गोपाल का अकाउंट खोलेंगे, गोपाल का अकाउंट आप यदि ओपन कर रहे हैं तो गोपाल क्रेडिट में है, और क्या लिख के होगा, बाई कैश बाई डिस्काउंट अलाउड, तो 14,800 200 टोटल गोपाल का 15,000 से क्रेडिट था। आप इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो 15,000 से क्रेडिट है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो we will solve some question for the better understanding. Thank you so much.